اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسٹوریز وظائف ہب کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کے گھروں میں اسی طرح برکت رحمت نازل فرمائے، آمین۔ آج 17 ماہ رجب ہفتے کے دن کا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے، نبی کریم راتوں رات تقدیر بدل دیتا ہے، بند تارے کھول دیتا ہے۔ آج کا خاص وظیفہ ان کے لیے ہے جو کئی سالوں سے وظائف پڑھ رہی ہیں، تسبیحات پڑھ رہی ہیں، لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو آج صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا، مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وظیفہ فوری طور پر آپ کی حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج مجھ سمیت ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ رات کو مانگے، صبح آنکھ کھلے تو اس کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اگر آپ بھی راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتے ہیں، تو اپنے گھر کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنی خواہشات کو غیب سے پورا کروانا چاہتے ہیں، تو یہ وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے۔ ایک بچہ جو ماں کا لاڈلا ہوتا ہے، وہ اپنی خواہش کو ظاہر کرے تو ماں اپنے تن من دھن بیچ کر اپنے بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب سے اپنے مقصد کی، اپنی حاجت کی خواہش کرتا ہے، تو میرا رب اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیتا ہے، اور جب حکم الہی آ جائے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی کو نہیں چھین سکتی۔ آج تک آپ نے بہت سارے اعمال، بہت ساری تسبیحات، بہت سارے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک خاص راز آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اسے پڑھنے کے بعد کئی مہینوں، کئی گھنٹوں، کئی سالوں تک آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کی جو حاجات ہے، اس وظیفے کو پڑھنے سے وہ سب کی سب پوری ہو جائیں گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، ایک خاص ترتیب ہے، جو میں اس ویڈیو میں آپ کو مکمل طور پر بتاؤں گی۔ جب آپ بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو پڑھ لیں گے، تو آپ اپنے رب کے لاڈلے بن جائیں گے، آپ کا من چاہا نصیب لکھ دیا جائے گا۔ جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے، پورا ہو کے رہتا ہے۔ آج کا وظیفہ ان کے لیے جو گھر میں جوان بیٹھی ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، رشتے آ کر چلے جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، رشتوں میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ دے کر چلے جاتے ہیں، تو کوئی بندہ رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس بندے کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں اور خود بھی پڑھ لیں، ماں باپ بھی پڑھ لیں۔ اس طرح اگر آپ جلدی شادی کے اسباب چاہتے ہیں، شادی قریب ہے، ماں باپ پریشان ہیں، پیسوں کی کمی کی وجہ سے بیٹی کا جہیز لینا ہے، گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اتنی مہنگائی کے دور میں کیا کریں، تو میرا رب جب غیب سے مدد کرتا ہے تو وسیلے خود بخود بن جاتے ہیں۔ جب غیب سے مدد آتی ہے تو جلدی شادی کے اسباب بھی بن جاتے ہیں، ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ذکر الہی ہے، جس کو پڑھنے کے بعد بندہ رب کا لاڈلا بن جائے، اور رب جو پتھر میں کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے، کیا آپ کی حاجات پورا نہیں کر سکتا؟ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج 17 رجب ہفتے کے دن اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑے گا۔ جب کبھی پیسے کی ضرورت پڑے، جب کبھی ایمرجنسی آ جائے، کبھی آپ پر پریشانیاں، مصیبتیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب آپ کے راستوں میں رکاوٹیں، بندشیں حد سے زیادہ بڑھ جائیں، جب ہر قدم پر ناکامی کا سامنا کرنا پڑے، جب آپ کو بند گلیوں میں محسوس کریں، جب آپ کو کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو پھر آپ کو یہ خاص وظیفہ راتوں رات امیر و کبیر بنائے گا۔ جب کبھی پریشانی آئے، کسی کے پاس جانے سے پہلے
दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले घर की खामोश कोने पर बैठकर ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेना। रब्बे करीम के हुक्म से फरिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम अखराजात बेहतरीन बना जाएंगे। हर कोई जानता है जब तक रब ना चाहे कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानी का खात्मा नहीं हो सकता। फिर क्यों दर दर की ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो। आज एक ऐसा मुश्किल कशा अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे जब कभी अल्लाह वालों ने पढ़ा तो अल्लाह के नेक बंदों ने पढ़ा। जब किसी ने तन्हाई में बैठकर रब्बे करीम के सामने ये वजीफा पढ़ा, रब्बे करीम ने रातों रात तकदीर के फैसले सुना दिए। बड़े बड़े वसाइफ पढ़कर थकी हैं, बीमारियां जा नहीं रही, बेबसी हो चुकी है, बीमारियां लाइलाज हो गई हैं, से निजात नहीं मिली। अपने घरों से बेसुकूनी बेबरकती खत्म करने के लिए पढ़ लें। आज लाखों कमाने वाले भी महीना होने से पहले रोता परेशान नजर आता है। हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। 30-40 हज़ार तनख्वाह पर काम करते हैं, इनकी हालात कैसे बेहतर हो सकती हैं, वो घर के अखराजात को कैसे पूरे करें। लेकिन जब आपके पास माल, आपकी दौलत, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, थोड़े पैसों में भी ज्यादा काम होना शुरू हो जाता है, फिर आपके मसाइल खत्म हो जाते हैं। आप पर बीमारियां नहीं आती, परेशानियां नहीं आती, आपके घर में रहमतें बरकतों का नज़ूल हो जाता है। अगर आप अपने घर से बेसुकूनी और बेतरतीबी का खात्मा करना चाहते हैं, अगर आप भी तमाम मसाइल परेशानियों से खात्मा करना चाहते हैं, तमाम हादसे तमाम नुकसान से रब्बे करीम की हिफाजत में रहना चाहते हैं, तो एक बार ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ना। अल्लाह का कोई नेक वली फरिश्ता इंसानी रूप में आएगा, आपकी मदद करेगा। रब को राजी करना, रब से मांगना सबसे आसान तरीका है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है, हम अपनी कोई मुश्किलात वक़्त में हम सबसे पहले दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों से मांगते हैं। जब कोई मुँह नहीं लगाता या हमारी मदद नहीं करता, फिर जाली पीरों फकीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। ये मिसाल पिछले वक्तों में भी आते थे, पैगम्बरों और रसूलों पर भी ये रिज़्क़ की तंगी आई, लेकिन कभी अपने रब के अलावा किसी से नहीं मांगा। आप पर जब मुश्किल वक़्त आए, जब भी परेशानियाँ आए, आपने हमेशा अपने रब के सामने बैठ कर ये वजीफा पढ़ना है। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस खास अमल की तरफ चलें। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत से वज़ाइफ डेली बेस पर अपलोड कर रही हूँ। अब अमल क्या है? आज 17 रजब हफ्ते का दिन आपके पास मौजूद है। आपको जब जहाँ वक़्त मिले बावजूद मसल्ले पर बैठना है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए मुबारक पर 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, मुख्तसर और सादा और साथ दुरूद सल्ली अला मुहम्मद या सल्ली अला वसल्लम पढ़ ले। आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिम पढ़ ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुरूद इब्राहिम की बहुत ज़्यादा फजीलत और बरक़ात हैं। 3, 7, 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फौरी तौर पर आपने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर किसी का मकसद एक जैसा नहीं होता, हर बंदे का मकसद अलग होता है, तो लिहाजा कोई भी मकसद हो, आप बेघर हैं, किराए के मकान में रहते हैं, ज़ाती घर मांग ले, दौलत, शोहरत, गाड़ी, आप जो मांगना चाहते हैं मांग ले, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी पसंद कर अपने घर के हालात को बेहतर बनाने के लिए पढ़ ले। घर से बेसुकूनी बेतरतीबी के खात्मे के लिए पढ़ ले। ज़िंदगी के हर मकासद में कामयाबी के लिए आपको ये वजीफा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त। अपने मकसद की नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। सबसे पहले जो वजीफा आपने पढ़ना है वह रब्बे करीम का एक नाम है। आपने पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जब कोई बंदा ज़मीन पर बैठकर एक बार रब्बे करीम को सुबहान अल्लाह से पुकारता है, तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है जो रोज़े महशर आपके लिए साया बनेगा। हस्बुनल्लाह आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तो जो कह रहे हस्बुनल्लाह
हस्बुनल्लाह हस्बुनल्लाह। इस तरह आपने हस्बुनल्लाह को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर 10 बार पढ़ लें। जब आपकी ज़ुबान से हस्बुनल्लाह निकल रहा है तो आप रोते तड़पते सिसकते हुए रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 10 बार हस्बुनल्लाह पढ़ने से आप अपने रब्बे करीम से हाथ फैला कर जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियाँ भर भर कर अता फरमाएगा। वो ज़ात इतनी रहमान है, इतनी करीम है, जब जीने पर आती है तो छप्पड़ फाड़ कर अता फरमाती है। ना चेहरा देखती है ना अमाल देखती है। सुभान अल्लाह पढ़ने से रब्बे करीम की तारीफ होती है। रब्बे करीम की तारीफ करने वाला रब का लाडला बन जाता है। जब कोई बंदा अपने मुश्किल वक़्त में सुभान अल्लाह को हाथ की उंगलियों में सिर्फ 10 बार पढ़ेगा, मकासद को ज़हन में रख कर पढ़ेगा, वो रब का लाडला बन जाएगा। ये रब की लाडली तस्बीह है। जब रब के लाडल बन जाता है फिर रब फरमाता है फरिश्तों जो मांगता है इसकी हर हाजत को पूरी कर लो। सुभान अल्लाह को सिर्फ 10 बार पढ़ने के साथ ही दूसरे नंबर पर आपने जो पढ़ना है वो आज का खास और शर्ती अमल है। आपने दूसरे नंबर पर सूरह कौसर पढ़नी है। आज एक ऐसी मुश्किल कुशा अमल है, एक ऐसा ताकतवर एक खास मुजरब अमल आपके हवाले करने जा रही हूँ जिसे दौलत की खास तस्बीह कहा जाता है। रब्बे करीम से पैसे हासिल करने का, रब्बे करीम से खजाने लूटने का एक खास राज है। आपके हवाले कर रही हूँ सूरह कौसर। आपने कितनी बार पढ़नी है तवज्जो करें। आपने सूरह कौसर को 33 बार पढ़ना है और वजीफे पढ़ते दौरान आपने किसी से कोई बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करेगा। जब आपकी ज़ुबान से सूरह कौसर निकल रही होगी अपनी हाजात को, अपने मकसद को ज़हन में रख कर रब्बे करीम से मांगते चले जाइएगा। सिर्फ 33 बार सूरह कौसर को पढ़ते दौरान आपने रब्बे करीम से पहाड़ जितना सोना भी मांगेंगे। मनपसंद नौकरी चाहिए और शादी करनी है, रब्बे करीम की ज़ात बेहतरीन अता फरमाएगी। जब कोई अल्लाह और अल्लाह पाक से लो लगाएगा, अल्लाह पाक से मांगेगा, खलूस दिल के साथ मांगेगा तो अल्लाह पाक छप्पड़ फाड़ कर भी अता फरमाएगा। 33 बार सूरह कौसर पढ़ने के साथ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा जिससे आप हर कदम बढ़ाएंगे, कामयाबियाँ आपके मुकद्दर हो जाएंगी। आप रब्बे करीम से जो भी मांगेंगे आपके मकसद में लिख दिया जाएगा, क्योंकि आज का वजीफा पढ़ने के बाद आपके मुंह से निकली हुई हर बात पूरी हो जाएगी। इस बार सूरह कौसर पढ़ने के साथ आज तीसरे और आखिरी वजीफे के बाद ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। बाज़ औक़ात जब इंसान पर मुश्किल वक़्त आता है, परेशानियाँ आती हैं, मसाइल आते हैं, इनकी बड़ी वजह गुनाहों की पकड़ होती है। इंसान के गुनाहों की पकड़ हो जाए फिर बंदा कुछ भी कर ले वो कामयाब नहीं हो। पहले नंबर पर आपने 10 बार सुभान अल्लाह पढ़ना है। दूसरे नंबर पर 33 बार सूरह कौसर पढ़नी है। तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अस्तग़फिरुल्लाह का वजीफ़ा है। आज वो बहनें बेटियां जो कहती हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हमारे अखराजात पूरे होने का नाम नहीं लेते, हमारे मसाइल ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, तो वो तीसरे नंबर पर अस्तग़फिरुल्लाह को पढ़ लें। अस्तग़फिरुल्लाह को कैसे और कितनी बार पढ़ना है? अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इस तरह आपने अस्तग़फिरुल्लाह अपनी दाएं हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर 333 बार पढ़ना है। आपने 333 बार अस्तग़फिरुल्लाह को नदामत और शर्मिंदगी के साथ पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह को एक तोहफ़ा है, अल्लाह पाक से रुजू करने का एक ज़रिया है। अगर आप अल्लाह के पसंदीदा बंदे बनना चाहते हैं तो आप 313 बार अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए अपने कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करवाने हैं। आपने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में जो दुरूद पाक आपने अमल के शुरू में पढ़ा था अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। ये वजीफ़ा बताए गए तरीके के साथ पढ़ लीजिए। के बाद आपने हाथ उठाकर अपनी हर हाजत का अल्लाह पाक से सवाल करना है। अल्लाह पाक बड़ा गफूर और रहीम है, आपकी हर हाजात हर जायज़ दुआ को कबूल फरमाएगा और अल्लाह पाक बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा वो भी अता फरमाए, जो नहीं मांगा वो भी अता फरमाए। नाज़रीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह के नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में लिख दें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।